and welcome guys to the new episode of our podcast 90 plus 3. How are you guys doing today this week? Good. How are you guys doing? I'm good. आयुष कैसा है भाई? I think you're at work. Sue. Always, yeah, it's a good week. I've been happy. It's not snow yet, so that's also positive here. अपने यहाँ तो स्टार्ट हो गया. कनाडा में स्नो फुल फ्लेज चालू हो चुका है guys. And just a disclaimer, if I wear a mask in the middle of the stream, there's a security guy who's hovering around. I'm in the library right now, so देखते क्या होता है. That's the dedication we expect from you. 90 plus 3 dedicated लोग भाई. खतरों के खिलाड़ी level 3 छोड़ेंगे नहीं भाई. Okay. Let's start this week's discussion with the Big Six. Let's focus on the first match, Watford versus Chelsea, because it was a tricky match. If you saw the match, it was like Watford could have drawn, or at least they could have even won the match if they had taken their chances. So eventually, Chelsea got away with the victory. So yeah, thoughts about Watford versus Chelsea? I think Chelsea were missing a lot of their first team players, so that also impacted their. Not Lukaku. Yeah, against Watford, he would have been good actually. So Chelsea were missing a lot of first team players, which also impacted their performance. And Watford, I think they are rejuvenated when Ranieri come in. So they just want to go and try and win games. Especially Joshua King has found his long lost form somehow. So that's why I think it was a match with Chelsea. I thought they will drop points, but somehow they got the points, which disappointed me because I don't like Chelsea much. But they somehow won the game, and that's it. There's nothing to talk much about there because it was mainly these things which impacted the result. Yeah, I was gonna say I couldn't see a lot of games this midweek because obviously सब काम कर रहे थे, दोपहर को थे यहाँ पे matches. But seems like I just want to say Ranieri is doing well. Watford के साथ he's trying to attack, like I said the last time. ऐसा नहीं कि he's just setting up shop and trying to get results and just try to scrape through 1-0 wins. And I think he takes risks. And Chelsea का तो I'm not even sure what lineup did they play. So I wouldn't be the best person to speak about Chelsea this week. But Actually, they're getting points on. Yeah, getting points on the match, table. Go on. नहीं बोल. I'm just saying they're getting points on the table. So City, Liverpool, these three are like the top 3 contenders right now. And Chelsea slowly. मेरे को तो लग रहा है Chelsea जीतने वाला league. But slowly अब वो points डाले जा रहा है. It's like for us picking the lesser of the two evils, Liverpool या तो फिर Chelsea, और तो हम लोग हमेशा Chelsea pick करते हैं क्योंकि eventually Liverpool से कम है ना. Liverpool नहीं चाहिए. एक दिन ऐसा आएगा कि Liverpool 19, Chelsea 19, United 20, तब क्या करेंगे भाई? But चलो. Yeah, no, but I think even Tuchel after the game he commented that we shouldn't have won this match, or maybe we could have drawn this match, but we were lucky. So that is in itself it should, because Mendy ने काफी थोड़े बहुत सेव निकाले. एक बार तो बॉक्स के बाहर था, उसने एक चैलेंज डाला, थैंकफुली वो कैसे तैसे सही हो गया, वरना सीधा रेड कार्ड था और वॉटफोर्ड का क्लियर गेम ही था. कैसे तैसे बचे चेल्सी, मेरे को पता नहीं कैसे बच गए, बट कैसे तो निकाल लिया. Also because they were missing James also on the right, जो एक काफी बड़ा presence अभी बन गया इस Chelsea side के लिए, how he attacks and everything. And हाँ, Lukaku भी थोड़ा, but ठीक है, eventually they got away. And these are the kind of games that if you don't drop points here, these games help because you're not playing and you're getting away with it. वही चैंपियंस वैसे क्वालिटी दिखाने लग जाता है जनवरी दिसंबर के अराउंड, जिसने ये सब करने लग गया ना, और चेल्सी किए जा रही है like getting 3 points on the board because the games also coming thick and fast, तो तुमको बस जीतना है. You can't expect in just performance. Exactly. हाँ, तुमको नहीं अच्छा खेलना, तुमको बस जीतना है. Yeah, so that was Watford versus Chelsea, and the next interesting game was again Villa versus City. City ने तो dominate किया, 2-1 जीते, but वो गेम में भी 2-2 हो सकता था. But obviously क्योंकि City है, वो 1-3, 1-4 भी कर सकते थे considering the chances that they had. But हाँ, वो भी थोड़ा close था. And Gerrard also 2 wins, and then he faced his first big challenge, which I can't say he failed, but this was expected. मतलब respectfully हारा, ऐसा नहीं कि 4-0 5-0 हरा के चला गया अपने पहले ही बड़े मैच में Pep, which is also good. Yeah, thoughts about that? Shout out to Bernardo Silva. What a goal! Top goal. And he has taken over the Gundogan role from last year. I think he is the one who is coming and scoring in goals for Pep's team now. And he's been performing surprisingly well in all the matches. Imagine in the summer he was supposed to leave City, and now he is their main player now.
And as you mentioned, I think Gerrard didn't do bad. They were playing. It was expected result, and Watkins also started playing well again under Gerrard. So Yeah. he can be a good FPL asset going forward. I think from Villa team. I think you should not talk about it. Yes, then if I said now he'll flop and Ings will अभी start पक्का me. आयुष लेना मत, हम लोग दोनों ले रहे, ठीक है आयुष? पिक करता हूँ तेरे को मैं, कौन से प्लेयर्स खरीदना है, ठीक है? लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आयुष इज नॉट पिकिंग. Yeah, no, but yeah, jokes aside, he played well. He even set up another chance as well. Could have been 2-2 or obviously City का तो बहुत chances थे. So yeah. अपार्ट फ्रॉम द रूटीन, मतलब अपार्ट फ्रॉम द रूटीन सिटी कंट्रोल जो होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट पेप फुटबॉल, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा था इसमें, जेरार्ड का हार्ट जो टीम में इंस्टॉल कर रहा है इस वक्त पे. और दैट इज व्हाई आई थिंक दैट इज द रीजन हाउ वॉटकिंस कुड स्कोर 2-0 के बाद 2-1 हुआ फर्स्ट हाफ में, एंड देन एंड में लास्ट 15 मिनट्स विला वर अटैकिंग एंड सिटी की फटी हुई थी. आई मीन दे वर स्टिल मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ फुटबॉल व्हिच कम्स नेचुरली टू देम. अगर सिटी के प्लेयर्स को तू रात को ना सोरे रहेंगे ना, छापड़ मार के बोलेगा ना क्या कर रहा है, तो वो लोग फिर भी कंट्रोल करेंगे बॉल, ऐसे खेलते हैं वो लोग. तो वो नेचुरल उनका एबिलिटी है, वो ब्रीथ ऐसे करते हैं कि उनको पता है कंट्रोल कैसे करना, इसलिए बच गए. एंड जो तूने बोला हाँ कि फटी थी, एकदम सही है, बिकॉज यू कुड सी द रिलीफ एग्जैक्टली फुल टाइम पेप की एकदम सेलिब्रेट, भाई हाँ चलो मैच निकल गया, ये जीतो, मेंटली एक निकल गया, ठीक है निकल जाता है एंडिंग में थोड़ा था बट निकल गया यस बोल के वो भी चला गया. और जेरार्ड का सीन, मतलब आई हैव स्टार्टेड सीइंग कि वो हार्ट, मतलब वो जो हार्ट से खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे यंग, उसने एशली यंग को क्यों खिला रहा है वो 2 मैच से, बिकॉज़ आई नो कि एशली यंग पूरा जान डालते हैं, भले टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट नहीं, जैसे फ्रेड इन जवान एशली ब्रो, एशली जवान वो खेलेगा, और वॉटकिंस भी ब्रो, वो तो हमेशा जान डालता है, ऐसा नहीं था क्योंकि लेजी स्ट्राइकर है. तो वॉटकिंस विल प्ले. जेरार्ड तो भाई ओनली एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स, क्योंकि उसका हिस्ट्री रेज्यूमे बता रहा है कि ही इज डूइंग वेल. एंड भाई जेरार्ड में कितना रेजिलियंस है, इतने साल लिवरपूल में टिका है वो, और उसने मतलब स्कैरी है मेरे लिए. जेरार्ड विल बी अ ब्रिलियंट. He will turn out to be very good. He will polish his skills as a coach and manager, and which will eventually help him to land the Liverpool. What is scary is that people try their stints in football and then they leave. जैसे नेविल के लिए काम नहीं किया, उसने छोड़ दिया. He's like he's not, this is not for me. Scholes ने छोड़ दिया. बट जेरार्ड ने लाइफ ही ऐसी जी, इतनी रेजिलियंट, 20 साल लिवरपूल में, मतलब 20 साल नहीं, लिवरपूल में जितने भी साल रहा वो, एंड ही इज सो रेजिलियंट, इतना एंड्योरेंस है ना उसमें कि अगर वो कम फेजेस में भी जा रहा है ना अपने मैनेजरियल करियर में, तो भी वो रुकेगा. एंड आई मीन दैट इज स्कैरी टू थिंक, एंड इट इज गुड इन अ वे फॉर फुटबॉल, बट या लेट्स सी क्या होता है. Yeah, so 1-2 City also won, Chelsea also won. The next match was the Merseyside derby. Everton thrashed by Liverpool, and Liverpool doing their usual business. It's a I don't know, I think Irish also, I'll include here, we are fans of the Jurgen Klopp style of football, or the Bielsa we can say, but so in a way you all should be happy that somewhat of a similar style or a manager is going to be at your club only, और same चीज implement करने वाला है. But yeah, so वो तो अलग बात की बात है, but yeah, Liverpool again 4-1 derby में Everton को. See, the funny part is I hate the club, but somehow I like watching the Liverpool play. And they just, it doesn't make even sense that they'll draw points. You just wake up and you see, okay, Liverpool won't draw points here. Any team you play against them. Fun fact, Liverpool have won more these derbies at Goodison Park than Everton. Than Anfield, yeah. Not Anfield, than Everton. So Everton has won lesser derbies than Liverpool at Goodison Park at their home. So Liverpool have been thrashing and they're maintaining the dominance there. And even if Everton were trying to play well sometimes, in some patches they were trying to attack and play well, like Richarlison, and Coleman also did well. But then Coleman fluffed his lines and let Salah score. So it was great goal. Salah, he went on like alone. He didn't need, and he had a very specific angle to aim at. He needed that preciseness which he had, and he's in the form of his life, man. No one can touch him. And I thought it was a miss hit. But that miss hit also went like it was perfectly placed. It's a perfect miss hit. तेरा दिमाग ही ऐसा चलता है. वो छोड़. What I'm saying is Benitez also looks like a manager, guys, कि मतलब वो भी डायनासोर टाइप मैनेजर जाने वाला उसका, not even at Everton. हाँ, वो डिक्लाइन चालू हो गया, and he looks like a manager is not adapting anymore, which is sad to see. Benitez ऐसे टाइम से था कि मतलब लिवरपूल मैनेज किया, चेल्सी मैनेज किया, तो
बट वो मोरिनियो वाला है अभी, मतलब उसका टाइम हो समझ गया गया, वही डायनासोर टाइप लग रहा है। एंड लिवरपूल का तो क्या बोलूं, सिर्फ एक ही वीकनेस था कि उसके प्लेयर्स टायर कर सकते हैं, बाकी क्लब में कोई वीकनेस है नहीं, कोई विजिबल वीकनेस को पकड़ नहीं सकता। सिर्फ एक वीकनेस है कि उसके प्लेयर्स फटीग हो सकते हैं, और वो भी उसने कॉन्कर कर लिया है। तो इट इज, ये सीजन तो वो बस देखना है। या तो बिग प्लेयर साला इंजर्ड हो गया तो गेम थोड़ा थबड़ थबड़ हो सकता है, तबड़ तबड़ वरना सकते हैं, और तो काउंटर भाई अटैकिंग उसका वीकनेस है इन अ वे। और काउंटर अटैक मतलब ओले ने किया है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारे टाइम्स काउंटर अटैकिंग भी है, बट इन अ वे कि मतलब उनका प्रेशर ऑब्जॉर्व करके फिर काउंटर करो। But I don't see any other team beating Liverpool right now because of the form they are in, because of the form Salah is firing in. The only thing I'll ask people to look out to is Salah and Mane is going to go to the AFCON जो भी चल रहा है चैंपियनशिप जनवरी में, बट which can And they impact. will only go. gonna miss 2 matches. Yeah, and Bro, 2 मैच uh, काफी एक फॉर्म, मतलब टीम का मोमेंटम Brentford ब्रेक और करने के लिए 2 मैच काफी है, और उसके बाद आने के बाद भी बोल बोल। वो भी है Chelsea will miss कंटिन्यूटी। Mendy too. So we have Arrizabalaga also there. So it's not easy for both of them. It can be a good हाँ, time for you guys. Yeah. कैन बी, आते हैं अपने Yeah. से भी। Speaking of which, let's move on to your game. Manchester United 3, Arsenal 2. So yeah, 2. बताओ। If I'm going to state it again, if he is the problem, then I want this problem to continue for this club for as long as Ronaldo plays. He comes in clutch. I was reading a fact some time back that whatever goals he has scored this season have come when United was drawing or losing. I don't know how he is the problem, Suyash. I don't understand it anymore. तेरे दिमाग में बैठ गया, मैंने तो तेरे को एक्सप्लेन कर लिया क्यों है प्रॉब्लम वो। वो उसके बाद आई नहीं डोंट, प्रॉब्लम है. That is the only अरे difference वो that I'm प्रॉब्लम नहीं talking है रे, द about. वे ही प्लेज इन अ तो बता, टीम ही इज अ प्रॉब्लम, ये आई एम सही बोल टेलिंग रहा यू। है सुयश। वो अब मैं इसके नहीं, पर्सपेक्टिव से ये तेरे ऐसे को बोल रहा है बताता जैसे बोलना चाहिए लोगों को, मतलब हूँ। ऑब्वियसली फैंस को हाँ यही बोलना चाहिए करेक्ट कि रोनाल्डो प्रॉब्लम नहीं, 2 गोल करेक्ट मारा है उसने, करेक्ट। तो ऑब्वियसली क्यों प्रॉब्लम हाँ बोलेगा कोई भी आदमी उसको। I नहीं will बट give you one एज लॉन्ग instant. एज, नहीं नहीं आयुष, उस अभी मतलब एज लॉन्ग एज ये हर मैच कर रहा है ना, बट उसको अभी समझ फिर में तो नहीं आ बोले रहा मैं हर क्या मैच बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर सीरियसली सकते। बोलूँ तो समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। मेन मैन मैं प्रॉब्लम नहीं है, चल मैं मान गया हूँ प्रॉब्लम नहीं है वो, बट ऑब्वियसली अभी पता नहीं है, बता हर मैच ये करेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और हर मैच तो कोई वैसे भी कोई प्लेयर नहीं कर सकता है, वो भी एक बात अपने को मानना He पड़ेगा। was he तो was या आई dropped. काइंड ऑफ He एग्री was विद व्हाट ही सेइंग, बट उसका पॉइंट जो है वो एकदम देख मेरा टैक्टिकली पॉइंट अलग बहुत ही है। क्लियर है, और इसको समझता नहीं आयुष हाँ को, मतलब इसको मैं समझाऊं ना व्हाट्सएप पे लिखो बड़ा बड़ा मैसेज तो भी नहीं समझेगा, बिकॉज उसको समझ में नहीं आता मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ। वो आई एम टैक्टिकली व्हाट आई एम बोल रहा है और सेइंग ये इज, इम्पैक्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा है। उसने हाँ गलत पकड़ लिया, इसको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हेटर रोनाल्डो का, मैं रोनाल्डो का फैन हूँ रे, पर मैं बोल रहा हूँ कि इस टीम में जब वो आया, इस टीम वो टीम प्रिपेयर्ड नहीं थी, और अभी भी मतलब मुझे लगता है कि जब वो खेलता है तो बाकी टीम चिप इन नहीं करती है गोल्स के साथ। बट अभी सुरेश कल मैं का अभी रिजल्ट, आई नहीं आल्सो सुन सुन स्टार्टेड मेरी टू बात हैव अ सुन, मेरी चेंज बात ऑफ सुन, मेरी थॉट। बात सुन पूरा, मेरी पूरी बात सुन। 3-2 जीत रहे हैं हम लोग, वेरी गुड, हम लोग अगला मैच भी जीतेंगे 2-1, नेक्स्ट मैच भी जीत सकते हैं 1-0, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। रोनाल्डो के होते हुए रोनाल्डो सारे गोल्स मारेगा, ये गिवन है। रोनाल्डो नेचुरली भी सारे गोल्स मारेगा, ये गिवन है। ये दो चीज हमेशा गिवन रहेगी, रोनाल्डो विल स्कोर गोल्स, करेक्ट रोनाल्डो विल ऐड टू स्टैट्स, रोनाल्डो हमेशा करेक्ट। जब खेलेगा तब गोल मारेगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब रोनाल्डो खेलता है, वो खेलता ही ऐसा है कि पूरी दुनिया उसी को पास करती है, कायनात लग जाती है ना ये करने के लिए, पूरी कायनात उसी को लग के पास करने की लगती है। Whereas without Ronaldo, a team does not depend on him. A team tries to play fluidly, which we were doing for 2.5 years, and we will do without him. रोनाल्डो के बिना भी हम लोग जीत रहे थे, अच्छा खासा जीत रहे थे, इनफैक्ट अच्छा खेल रहे थे, और उसके बिना भी और उसके बाद भी करेंगे, वो रहेगा भी तो। आई स्टिल फील उसके बिना टीम बेटर खेलेगी एज अ टीम। अभी जब रोनाल्डो आया, ज्वाइन किया, ओले को प्रॉब्लम मिली, और ओले की भी गलती है, ओले की तो गलती है कि उसने अडाप्ट नहीं कर पाया। रैंगनिक अडाप्ट करता है कि नहीं वो देखेंगे, बट ओले का जो स्टिंट है, जो सैकिंग हुआ, दैट वो इस चीज से आया कि उसने रोनाल्डो की पर्सनैलिटी भी हैंडल नहीं कर पाई, वो खुद भी वीक है, इज नॉट अ टैक्टिकली गुड मैनेजर, रोनाल्डो की पर्सनैलिटी हैंडल नहीं कर पाया, और इतना बड़ा ईगो का प्रॉब्लम, मतलब ऑल आई एम सेइंग इज रोनाल्डो इज स्टिल नॉट द, इट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट ही वाज द प्रॉब्लम रोनाल्डो ओले के टाइम पे। रैंगनिक जैसे उसको करता है ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो अभी भी प्रॉब्लम है कि नहीं, समझ रहा है। एग्जैक्टली माय मेरा ये पॉइंट यही पूरा था कि पॉइंट है, अभी तू समझ इस बात को, मैं हाँ हेटर नहीं हूँ, रोनाल्डो का वो नहीं हूँ। अगर रोनाल्डो के रहते हुए रैंगनिक ने उसको अडॉप्ट हाँ करवा लिया, तो हम लोग के लिए तुझे पता नहीं कि मैं यूनाइटेड का फैन हूँ, मैं फ्रेड को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं क्यों रोनाल्डो को सपोर्ट नहीं करूँगा जो मेरा चाइल्डहुड हीरो है, समझ रहा है। रोनाल्डो के होते हुए अगर I'll रैंगनिक add ने to उसको, what your point is. You mentioned that other players don't chip in. That is what I am expecting from Ragnick as well. When you mention that other players don't chip in, that is not Ronaldo's problem. That is the इट इज team's नॉट हिज problem. That is the प्रॉब्लम, इट इज manager's जस्ट द वे problem. ही प्लेज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट हिज That प्रॉब्लम। is what the manager coming in has to make sure that the team plays as a team and not Ronaldo. या अबे अगर हो गया तो व्हाई नॉट, मैं तेरे साइड पे हूँ, तू वो मत समझ, मैं व्हाई And नॉट shout नहीं रोनाल्डो out नहीं to को। two वो three. मत समझा
मैं बोल रहा हूँ Shout यश, out अभी to एक तो ये पर्सपेक्टिव से देख, जो अभी मैं धीरे धीरे मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे भी ऐसा कोई प्यार नहीं है, बट मेरे को एनालाइज करने अच्छा लगता है। तो मैं अभी क्या समझ रहा हूँ कि अभी ये टीम, बिकॉज अब तो ओले नहीं है, वो एक बैगेज नहीं है कि कैसा खेलना है, यही हमारा स्टाइल है, रैग्निक आएगा। So if given a chance to start from scratch, being which we know that Ronaldo is going to be central of everything of this team, अब ये मतलब बेनिफिट कर सकता है इस बिकॉज रैग्निक ने भी गेम देखा है स्टैंड से, उसने बाद में अपलोड किया, ही हैज अंडरस्टूड कि मेरे को इसको यूज करना ही पड़ेगा। उसने पहले ही कमेंट में बोल दिया कि आई हैवंट नेवर सीन अ फिजिकल प्लेयर लाइक दिस एट हिज एज, ये सब बोल दिया। सो एक ये अच्छा है कि नाउ ही विल मतलब have his plan centered around Ronaldo, which is what actually he wants Ronaldo, and which can be beneficial for the team because he's chipping in with the goals. Now if he can set a style like that, जैसे अब लिवरपूल का मेन मैन ऐसा तो नहीं बोल सकते एक ही है, क्योंकि वो उतना फ्लूइड है, one works for the other works for the other. But if you guys can make Ronaldo the focal point and make the team function around him, अभी से, because you are starting off with on a new direction with a new coach, can be beneficial for you as well. So मैं तो थोड़ा अब agree करूँगा अभी धीरे। Tactically वो था, वो नहीं मानेगा, but it's okay. But because his point is valid, because वो perspective से देखा है, which is also not wrong. कि भाई ये तो अपना काम कर रहा है। And I would want मतलब मुझे सच में मेरा विश है कि रोनाल्डो को भी यूज करे, पूरा टीम भी एज अ टीम खेले, रोनाल्डो भी गोल स्कोर करे, ग्रीनवुड भी गोल स्कोर करे। मतलब समझ रहा है, जो 70 गोल रोनाल्डो मतलब जो 40 गोल रोनाल्डो मार रहा है, वो मल्टीप्लाई हो जाए 80 गोल में और बाकी 40 गोल टीम स्कोर करे। व्हाई नॉट? ये तो ड्रीम सिचुएशन है भाई। बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बोलूंगा तो तुम लोग मुझ पे चढ़ जाओगे, बट बेस्ट प्लेयर जो भी है गोट टाइप है वो, तो वो भी अच्छा कर रहा है, टीम भी अच्छी कर रही है, रैग्निक भी अच्छा कर रहा है, तो सही ना भाई, विन 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 सिचुएशन है। मैं सिर्फ when you say other players are not chipping in, Bruno ने मारा गोल, Rashford ने assist दिया, no, so other teams are also working. Other players are also working. That is what your point was. Excellent game. What I was saying that you say Ronaldo is problem and other players are not performing at that level. I was just flowing with that point of yours. I feel that the problem is still in the midfield. If the midfield issues get resolved and we just play whatever Rangnick wants us to play, however he wants to play, we'll play very well, including Ronaldo. And in fact, in the previous match, I'll give few shout outs. Dalot played his best match in the United jersey. I never seen him play this well. He was defensively also good. If Rangnick can play him well, he'll be better than Van Bissaka going ahead. Telles also had a good match. Fred is something. I don't know. So he played last 3 matches. He played very well actually. एक unpopular opinion दूंगा मैं। ऐसा Fred है, बकवास है, ये अपने को पता है, दिल से खेलता है इसलिए लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें वीकनेस टेक्निकली रैग्निक के सिस्टम में शायद मुझे लग रहा है वो चल जाएगा। वो बेस्ट होगा, इनफैक्ट वो बेस्ट फिट होगा उधर, मारना है, बॉल यूज करना है, चाहे वो टेक्निकली वीक हो, उसमें वो काम आएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये पूरा रिवर्स भी हो जाए कि वो हार्ड ट्राई कर रहा है कि ये फेल हो रहा है, पर मेरे को लग रहा है वो थोड़ा बूम बाम दे सकता है। I'll in fact agree. Surprisingly, I'll agree that Fred, as if we are playing in a pressing, counter-pressing type of football, Fred will be the most important player in the midfield, even more important than McTominay. I think McTominay can be benched for another season, but Fred will play most of the games. In the previous match, I don't know, he's unintentionally, he does something or the other that makes me laugh. He gave up a goal, he injured the goal went ahead, then he assisted one goal and then won a penalty. So it was perfect example of how Fred is. He fucks up, then he does something good, then he fucks up again. दो बॉल डालता है। साउथ अमेरिकन लोग ऐसे ही होते हैं, लोगो ब्रो। मेरे को सिर्फ दो चीज बोलना है, एक की मैकफ्रेड तो अच्छा करने वाले, और डीएम के इश्यूज जो बोल रहे हैं आयुष, वो तो अपने को 2 साल से, अपने को इस विंडो में उन्होंने खरीदा नहीं, बट सच बोलूं तो उन्होंने सारे पोजीशन स्ट्रेंथन कर दिए। वो लोग ने एक स्ट्राइकर चाहिए था, रोनाल्डो आ गया, उसमें कवानी भी ले लिया था वो लोग ने, राइट विंग भी, डीएम जो अपन कब से, सेंटर बैक भी ले लिया, डीएम जो कब से बोल रहे उन्होंने लिया नहीं, तो वो तो एक इशू रहेगा टीम में, वो तो एक्टिव इशू है। विदाउट रोनाल्डो, विद रोनाल्डो एक्टिव इशू। सेकंड की रैग्निक, यश जो तूने बोला कि रैग्निक उसके अराउंड सेंटर करेगा, नहीं, बट रैग्निक अपने प्लान में रोनाल्डो को रखता है। मैं बोल रहा हूँ यूज करने के लिए स्टार्ट तो वो उससे करेगा ही, क्योंकि उसके प्रेस में भी बोल दिया कि रोनाल्डो कितना फिजिकली फिट है और मतलब आई कैन नॉट चेंज एवरीथिंग एक ही चुटकी में, तो ही विल ऑब्वियसली कीप हिम इन
बट रोनाल्डो को भी अगर ऐसा रोल मिल रहा है कि जिसमें टीम भी फ्लरिश करे तो ही शुड एक्सेप्ट दैट रोल, मतलब समझ रहा है, व्हिच ही विल। आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ इशू क्रिएट करेगा, वैसा कोई नेगेटिव विलन थोड़ी है। नहीं नहीं, वो तो नहीं, उसको तो भी तो जीतना वो है यहाँ कैप्टन इंडिया। बन सकता है मैगवायर से बेटर नहीं नहीं, कैप्टन अभी नहीं भी। बन सकता, वो नहीं कैप्टन नहीं टीम नहीं, हेंडरसन बनना चाहिए, कैप्टन या तो फिर ब्रूनो बन सकता है, बाकी तो कोई ब्रूनो को भी नहीं बना बन दे चलेगा, ब्रूनो भी मेरे को सही तो है। ब्रूनो ही चाहिए, मैगवायर तो चाहिए ही नहीं। सकता। फर्स्ट मैगवायर आई नहीं थिंक है। फर्स्ट थिंग हाँ रैग्निक शुड मैगवायर, डू इज स्ट्रिप मैगवायर ऑफ हिज हाँ नहीं कैप्टनसी। चाहिए। चल देखते हैं रे, वो हाँ तो अब देखते क्या होता है उसमें, ऐसे हेट नहीं करने का। अब मैगवायर ने Oh, साइन कर लिया Ronaldo, तो। for one ठीक है। thing, I remember one more incident in the last match. So he was about to be subbed off. He's tired and I think he was suffering some of injury. Do you remember he cleared the corner and ran all the way to the other end for आयुष the वो वो third goal? भूख है इंडिविजुअल उसकी, इंस्टेंस है गोल रे। डालने की, एक पैर पे भी भागेगा वो बहुत बड़ा बात। तुम लोग इतना उसको ये करते हो ना, अरे मीडिया हाइप करते हैं तो ये लोग भी मान लेते हैं रे। उतनी फील तुम लोग की जब बट ये लगती भी है सब ना तो वो एक्सेप्ट करना ही आयुष, ये पड़ेगा। सब बट ठीक प्रेस है, वो बताता है ना करते ही कि हो एक तुम। इंडिविजुअल इंस्टेंस रोनाल्डो ने उतना भागा, देखो कितना अच्छा कर रहा है वो सब है रे। पूरा मैच देखने का, मैच में कितना कुछ करता नहीं है वो। मैच हाइप में तो हो गई भाई। बहुत कुछ करता है वो। नहीं रे ब्रो, वो मतलब जो उसको करना है करता उसका है। ड्यूटी करता है वो, मैं वो बोल रहा हूँ। ही डज हिज ड्यूटी वेल। जो सेंटर फॉरवर्ड रोल है उसका, स्ट्राइकर रोल है, वो अपना ड्यूटी परफेक्ट करता है। बाकी लोगों को तो इन अ वे तो सही बोलता है, बाकी लोगों को करना चाहिए वो। बट आई जस्ट डोंट वांट अ टीम दैट इज सोर्सिंग फ्रॉम रोनाल्डो, समझ रहे हो? आई वांट अ टीम दैट इज अ टीम। So that is where the manager comes in. That's how you're supposed to play your team. तो वही तो यार, देखा यश, वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, मैनेजर आ गया है अभी, अभी देखते उसको कैसे यूज करता है वो। बट अब ओले के रैंगनिक अंडर आ नहीं गया काम है ना, किया। तो लेट्स होप दैट द थिंग्स गो राइट वे। रोनाल्डो को भी सही यूज कर रहा है, तुम्हारी टीम मस्त बढ़ रही है आगे, क्योंकि तो मजा आने वाला है, बूम बाम होने वाला है। तो देखते हैं, लेट्स सी। इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर यू गाइस एज वेल। तो ठीक है, दैट वाज यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, 3-2 विक्ट्री, अच्छा कमबैक एंड एवरीथिंग। क्लासिक तुम्हारा यूनाइटेड वाला गेम, पहले खाओ फिर दो। Moving on from that match to Spurs versus Brentford. Spurs को finally 2-0 victory, अच्छा खेले, ठीक ही खेले, मतलब they were not bad. And you can't expect Conte's side to win 5-0, 6-0 unless they played like 1 year, they won something, वो confidence आ गया। अभी तो बहुत काफी नए हैं। बहुत तो बोरिंग गेम था ब्रो, यार कंसंट्रेशन मतलब अटेंशन नहीं जा रहा था गेम पे। देख रहे हैं फिर फोन पे देख रहे हैं, फिर गेम पे देख रहे हैं, काफी बोरिंग था। कॉन्टे है यार। तो 1-0 और ब्रेंटफोर्ड भी एकदम आउट ऑफ फॉर्म है, तो आई थिंक इट्स टाइम आयुष तू खरीद ले ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स। मैंने लिया था एम्बो एम्बो छोड़ा, फिर टोनी लिया, दोनों हंगने लगे साथ अरे यार भाई, अब हम दोनों को निकालना पड़ेगा। चलो माइनस कर रहे हो। I have some points from Spurs. So it I don't know. I don't like them. I don't like to watch Spurs play. They are so boring. Oliver Skip was the man of the match even after Son scoring a goal. Harry Kane, I think he was. कितने He played well. Skip played well, but he was an unknown player in the last 2-3 managers. हैरी केन Now में he's थोड़ा अनसेल्फिश सा हो गया है साला, अब गोल नहीं मारना उसको। अरे उसका मैं सच बोलूं तो बना रहा है साला। एम्बिश तो सच बोल रहा है, इसमें एम्बिशन है ना, वो थोड़ा लैकिंग दिख ambition रहा है चला बे। गया, उसको सिटी जाना था and he doesn't look like हाँ, he ये wants सीजन to बेचारा play. हिला हुआ लग रहा है बे, मेरे को बहुत हिला हुआ लग रहा है। He has lost his striker instincts, हाँ, striker जो abilities. He's lost that. सेकंड गोल भी मारा, वो खुद भी एक गोल मार सकता था। और जो सेकंड गोल मारा सॉन का, उसमें भी उसने काफी अच्छा बिल्डअप प्ले। हाँ, बिल्डअप प्ले क्यों कर रहा, तू गोल मार पाए, तेरे को हमने टीम में रखा है। हाँ, And उसने भी जो तू बोला ना वो गोल मार सकता, उसने लुकास मोरा को पास दे दी। अरे मारना गोल। हाँ ब्रो, वो जो टाइम आता है But ना he won't कि score. जब तक मेरी FPL टीम में he won't score. So प्लीज निकाल देना तुम। अरे वो वैसा केन का कैसा ऐसा टाइम आता है ना कि बुरा टाइम चल रहा है, बट ही स्टिल मतलब अपने जॉब पे जाके वो अपना काम कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा करेगा, है, ऐसा कर रहा है। and he's बट आई happy एम to श्योर not score but let the team win. या आई मीन आई विल डू माय जॉब एज अ स्ट्राइकर। अभी वो मतलब एज अ कैरेक्टर काफी स्ट्रांग है, तो आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक एंड इट विल बी नो टाइम। he needs a big game, ऐसा कोई डर्बी में मार दिया या कोई बड़ी सिटी के अगेंस्ट मार दिया या कोई ऐसा ही कुछ, चेल्सी लिवरपूल let कोई me बड़ा remove him कुछ from my event कर FPL दिया। team. He'll score. हाँ, और कॉन्टे को भी सच जैसे बोलो तो तूने, अभी 2-3 हफ्ते ही हुए, तो लेट्स सी ना, अभी और भी टाइम है। वही ऐसा वही नहीं वही। कि, So और जीत तो रही I है think that तो। was more or less this week's Big Six and other थोड़े बहुत matches हुए, that is okay since this was midweek and we also have games coming up in the next 2 days again. Like today we are recording, tomorrow the games start again. What we can do for this video is that we can take the predictions for next game. So now अभी चकमा ये के लिए ये फॉर्मेट में रखते हैं कि नेक्स्ट वीक के पहला तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम लोग को गेम्स बताता हूँ सब, इसमें से कौन सा चकमा रिजल्ट एक भी आ सकता हो वो बताते हैं। तो मैं तुम लोग को गेम्स बताता हूँ। वेस्ट हैम वर्सेस चेल्सी है, वेस्ट हैम के ग्राउंड पे है, होम पे चेल्सी इज प्लेइंग। वुल्व्स वर्सेस लिवरपूल है, वुल्व्स के होम पे।
Watford versus City है. United are playing. You guys are playing at home to Palace. Spurs at home to Norwich and Everton के home पे Arsenal. So Arsenal are visiting Everton. So ये 6 में से कौन सा चकमा तुम लोग को लगता है एक गेम कोई बता दो, and then we can discuss for these 6 games. We can, if you want, like you can take predictions and score and stuff. I would say West Ham Chelsea क्योंकि easy pick लग रहा है मेरे को. मतलब मैं कन्विंसिंगली नहीं बोल रहा, मुझे फिर भी अंदर से फील है कि ये वीक भी रूटीन वीक रहेगा, एवरीबॉडी विल गेट देयर 3 पॉइंट्स. बट वेस्ट हैम क्योंकि अच्छे फॉर्म में है भी नहीं, मॉइज इतना मतलब एंटोनियो ब्लैंक किए जा रहा है, एसपीएल में भी अच्छा नहीं है, तो बट फिर भी इफ आई हैव टू पिक वन आई विल से वेस्ट हैम चेल्सी, क्योंकि चेल्सी बहुत ही कन्विंसिंगली नहीं जीती है रिसेंटली. 2-1 विन अगेंस्ट वॉटफोर्ड, even though Watford played well and West Ham plays well too, so let's see and hope ki chakma turns through and West Ham gets a result against Chelsea. Yeah, that would have been my pick as well, because West Ham are playing at home and +1 and they are very stubborn at home, I feel. So they won't lose the match, because I don't think Chelsea will drop points, or all of them, because Reece James will be back again, and I think Lukaku should be back in the contention for playing that game as well. So they won't drop all points. I think it will be a draw, like a 1-1 draw. West Ham are not playing well, as Suyash mentioned. Antonio has just lost his fire somehow. So it should be a 1-1 draw. He was playing. Antonio is there since the first day. He was playing well. I think now maybe it's the time to remove it. Yeah. ठीक है. For me it will be like, I think Everton versus Arsenal. Everton 8 गेम से इतना गंदा खेला है कि अभी बोलेंगे होम पे, और यही अभी मौका है. I think Arsenal also coming off a defeat. So I think कुछ ड्रॉ भी हो जाए तो एवर्टन के लिए तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट है. But I expect a upset in Everton versus Arsenal. They need Calvert-Lewin back. I think Everton needs Calvert-Lewin back to change their season. काफी मिस कर रहे हैं उसको. So yeah, so let's, चलो ये तो चकमा हो गया. एक छोटा मोटा प्रेडिक्शन कर देते हैं अभी हर मैचेस का. Ayush, I start with you. Wolves versus Liverpool. Score line prediction. 4-0. Wolves Liverpool. Liverpool 4-0. Okay, 0-4. Okay. So Suyash, if you want to comment for the sake. Wolves का डिफेंस अच्छा चल रहा है, तो I'll say 2-0. मैं भी यही बोलना था, बट मैं उन लोग गोल तो मारना मुश्किल है, बट आई डोंट थिंक दे विल कंसीड आल्सो. 2-0 ही है, बट चल 3-0 सर, सेम नहीं रखते. 2-3-4. ओके. वॉटफोर्ड वर्सेस सिटी. सुयश, इसमें सुयश पहले. वैसा रनियरी 3-1 सिटी 3-1. गुड प्रेडिक्शन. आयुष. सिटी 2-1. मैं थर्ड बोलूंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा. तू अभी नेक्स्ट टाइम 0 वॉटफोर्ड, 2 सिटी, 2 या 3. मतलब इन शॉर्ट क्लीन शीट रखेगा सिटी. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें. यूनाइटेड वर्सेस पैलेस का. अभी यार गलत वाला पिक कर लिया. यूनाइटेड वर्सेस पैलेस एट होम टू पैलेस. से तुम लोग यार कभी इतना अच्छा नहीं खेलता पैलेस का, बट जीत तो जाओगे. रैग्निक का नया गेम, बट वो भी हो सकता है कि इम्प्लीमेंट कर पाए क्या उसका आइडिया, कुछ भी हो. एक ट्रेनिंग सेशन बूस्ट रहेगा, पर बूस्ट रहेगा. 2-1 यूनाइटेड. एक गोल तो मारेगी पैलेस. तुम लोग डिफेंस पे इतना भरोसा नहीं है. वो अच्छा भी खिलाता है ना अपना, कौन है मैनेजर, अपना नाम भूल गया. विएरा. 2-1 या 3-2, मतलब चल एक पकड़ना. 2-1. मेरा 3-1, क्योंकि विएरा तो मारेगा ही. हम लोग लीग 3-1. ठीक है. स्पर्स वर्सेस नॉर्विच. ये तो 2-0 है. 2-0 3-0 जो भी लेना है ले लो. 1-0 भी हो सकता है. ये तो सब लोग यूनानिमस 2-0 बोलने चाहिए. सब लोग का 2-0 है प्रेडिक्शन. ये फर्स्ट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. सुयश बोल, आयुष बोल ले तो फिर भी कुछ भी. मेरा चल, तूने 2-0 बोला ना. 1-0. 4-0. मेरा 4-0. विला लेस्टर मजा आएगा ब्रो. विला लेस्टर भी बोल सकते हैं. चलो विला लेस्टर मेरे लिए ड्रॉ. मेरे को लगता है
अच्छा हाई स्कोरिंग गेम होगा मेरे को तो लग रहा है। 3-2 विला। 3-2 विला, 2-2 ड्रॉ मेरा, तेरा? 3-1 Villa. With 3-1 विला। Madison to score for Leicester. मतलब मैडिसन को कोई मत रखो टीम में अपने। क्योंकि मैडिसन की आयुष पे आस है, आयुष ले लिया होगा अभी तक टीम में, तो कोई मत खरीदना। वेस्ट हैम वर्सेस चेल्सी, जो अपन चकमा बोल रहे हैं, वो किस तरह का चकमा हो सकता है बताओ? 1-1. मैं भी सेम बोलूंगा। 1-1 ही चल रहा है ना, वेस्ट हैम भी लास्ट गेम 1-1 ही कुछ तो ड्रॉ किया था। 1-1 या वेस्ट हैम टू विन एंड कॉज अ बिग अपसेट, क्योंकि लिवरपूल 1-1 को या भी हराया 1-0 यार हाँ, उनके। क्योंकि ये लोग इसके बहुत में ज्यादा नहीं हाई लेना स्कोरिंग चाहिए हमको। हो सकता है, क्योंकि फटाफट गेम हाँ, आ रहे तो हाई स्कोरिंग हो जाता है थर्ड बॉडी में, अच्छे डिफेंस नहीं रहते। बट मेरे को लगता है प्लेयर्स हाँ, टायर्ड भी रहते हैं, फटीग्ड भी रहते हैं। या तो दोनों ही ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे और बकवास सा हाँ गेम होगा, हाँ, वो भी हो सकता है। तो हाँ, मतलब एक्सपेक्ट हाई स्कोरिंग, सम गेम्स वुड बी वेरी हाई स्कोरिंग एंड सम गेम्स वुड बी जस्ट नील ऑल, या तो फिर ऐसा बहुत डिफरेंट। तो एवर्टन लास्ट गेम, एवर्टन वर्सेस आर्सेनल। आर्सेनल 1-0। इसमें तो मैंने तो चकमा दिया है, तो मैं तो होप कर रहा हूँ आइदर एवर्टन विल विन और ड्रॉ, बट आयुष तू बोले। 2-1 Arsenal. 2-1 आर्सेनल, ठीक है। मेरा तो या तो आइदर 1-1 ड्रॉ या 2-1 एवर्टन विन, या 3-1 4-1, कितना भी हो जाए, एक एवर्टन पकड़ना. विन या ड्रॉ। एवर्टन विन चाहिए हमको, चकमा है हमारा। ठीक है। I think that was more or less it for this week and the next week as well. And let's see how the games pan out. We have our, I'll keep this in mind, these predictions in mind. And next week when we do the recording for this week's game, we'll see how it went. So yeah, any thoughts you guys want to end it with? I'll just say we hope to put in another episode. We'll put in another shift on Tuesday, and if we can, we'll release another episode. Baki, if you guys like the video, if you guys want to share your opinions, just comment on the comment section. और जो भी है, रोनाल्डो प्रॉब्लम है नहीं है, आयुष सही बोल रहा है कि नहीं, तो बोलो नहीं है, जैसे। बस अभी छोड़ देते हैं हम। तुम लोग इस अभी बार अपन चाहिए तो छोड़ लाइक देते मत करो, शेयर भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, पर कमेंट कर दो, थोड़ा बातें बातें करते हैं यार, तो सुना पड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन, थोड़ा बहुत कमेंट करते। हैं। बाकी तुम लोग को पता ही है लाइक वाइक करने का। बाकी मैं सब कुछ बोलता तो आयुष +1 बोल देता है, तो आज मैं देखता हूँ आयुष क्या बोलता है। Come and do sue with me in the comments. I will open a sue gang. अभी फैक्टर्स होगा, अभी सिर्फ फैक्टर्स होगा। अभी आयुष इज factors sue. अरे फैक्टर्स का मतलब क्या है guys? मुझे अब तक समझा नहीं। Facts. फैक्टर्स Facts. फैक्ट्स हाँ, मतलब रियलिटी के सच्चाई। उसने फैक्टर्स क्यों लिख दिया? मेंटोस। सच्चाई, अरे उसकी लैंग्वेज में, पोर्चुगीज में facts is factors. ओ यही नहीं समझ रहा ना मेरे को, यही तो नहीं सीखा हमने। Sue करना जरूरी है. और उसने फैक्ट्स Come किस पे कमेंट sue किया? with me. हेट पोस्ट पे। मेसी हेट हेट पोस्ट पोस्ट पे? पे। अच्छा मेसी हेट पोस्ट पे अलग ही चल रहा है भाई। चलो ठीक ठीक है। है, वो तो चलते रहेंगे, 15 साल से चल ही रहा है, वो रुकने नहीं वाला। हम भी नहीं रुकेंगे, अबे हम वॉट भी एवर, चाहे अबे जब ये लोग ये वो एथलीट्स ना टॉप 15 लेवल पे साल होते तक हैं ना, चले। तो इन लोग को जो मोटिवेट हाँ, करता है ये लोग करते हैं, उनको करने देने का है। मतलब कुछ लोगों को पता नहीं आइटम मोटिवेट करती है, कुछ नेमार को अपने सिस्टर के करती है, बर्थडे पे करती जाना है। मोटिवेट करता है, तो वो करता नेमार है को ना। अपनी बहन मोटिवेट करती है. तो रोनाल्डो को ये चीजें करना कि लोग उस पर अटेंशन दे, मोटिवेट करते हैं, तो करने मुझे नहीं दो एज पता था लॉन्ग एज ही कि, बस स्कोरिंग। मुझे ये नहीं पता था कि रोनाल्डो को किसी ने मेसी को गाली दिया तो वो मोटिवेट करता है। ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज था, बस। अरे वो अलग है भी, उसको मतलब बहुत ईगो, उसको जीतना है ठीक है, ब्रो, बहुत बाय ईगोइस्टिक एनी हो गया हाउ. था, इसलिए तो मैंने भी उसको जान सपोर्ट दे, करना जान दे, छोड़ दिया था उसका ब्रो। डिस्कशन करना ही नहीं है, उसका जीते भाई जीते, मैं तो करता हूँ, बस मैं दुआ करता हूँ भाई वो जीते, जो जो मन में है उसकी चाहता यूनाइटेड जीते पूरी दुआ हो कर, जाए, तुम्हारी भी पूरी हो जाए। मेरा हमेशा यही रहा, यूनाइटेड जीत। रोनाल्डो का फैन तो जब हाँ, वो छोड़ा मतलब यूनाइटेड तो वो बदल गया ना ब्रो, ही बिकेम अ मशीन व्हिच इज नॉट बैड, मशीन बनना भी अच्छा है, गोल स्कोरिंग मशीन बन गया है। उसकी गोल्स है, अच्छा है। उसके ड्रीम्स है, उसका विजन है, कोई नहीं भाई, इसको जो पसंद करो, सपोर्ट, बिंदास, प्यार दो सबको। चलो चलो बात है। ठीक है, see you guys next week. It was a good session with you guys. I Yes, enjoyed it very well. मजा Bye आया, bye. Take काफी अच्छा care. फ्लो। बाय गाइस, मजा Bye. मारो।